Welcome dear students. In this lecture we are going to discuss about the next technique called as PCR or polymerase chain reaction. PCR इससे पहले भी आपने सुना होगा, and in this lecture we are going to discuss about the principle, brief procedure, some advantages, disadvantages and applications of this polymerase chain reaction. So what is PCR? PCR stands for polymerase chain reaction, and it is a technique which is used to amplify our DNA or amplify the target DNA sequence. Amplify means what? To multiply, to make number of copies. That is known as amplify. तो PCR हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें एक कॉपी से थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कॉपीज चाहिए तो हम PCR टेक्निक यूज़ करते हैं. ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, not only in the molecular biology but also for the research purpose it is used, and the main target is to amplify, to duplicate single copy or a few copy of a DNA, generating thousands or millions of copies of our particular DNA sequence, that is known as target sequence. तो PCR किस लिए यूज़ की जाती है? एम्प्लीफिकेशन के लिए, thousands of copies generate करने के लिए from single copy of DNA. This technique was developed by the scientist called Carl Mullis. ओके, तो कार्ल मुलिस नॉट, कैरी मुलिस. तो कैरी मुलिस ने ये टेक्निक डेवलप की है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, एंड इट इज़ लाइक अ बून फॉर आवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड. तो इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस in the year 1983 and was widely used in the research purpose, in the clinical purpose, and for that he received the Nobel Prize in the year 1993. So that is the discovery behind this PCR. So before going to the PCR, let's understand some concepts. That concepts are sense strand and anti-sense strand. तो ये sense strand और anti-sense strand क्या है? तो सबसे पहले this is the DNA strand 5' to 3' and 3' to 5'. तो जो 5' to 3' है it is known as the sense strand. ठीक है, जो 5' to 3' है it is known as the sense strand. sense strand को ही हम बोलते हैं coding strand. कोडिंग स्ट्रैंड को ही हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस सेंस स्ट्रैंड. इट इज नोन एज द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. व्हाई इट इज नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड? बिकॉज इट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड. ठीक है, तो यह है डीएनए. डीएनए का फर्दर होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड इट विल जनरेट एमआरएनए. Okay, so first one is the sense strand which is 5' to 3', and opposite of this sense strand is anti-sense strand which is 3' to 5'. Okay, तो anti-sense strand को हम non-coding strand बोलते हैं and it is known as the template strand. ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड में. जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में होता है, एंड दिस एमआरएनए कैन सी, ये जो 5' to 3' है दिस आर द कोडॉन्स लाइक AUG. इट इज सेम ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, सिर्फ यहाँ पर थायमिन रिप्लेस हुआ है बाय यूरासिल. सो AUG, GGG, CUC, AGC and GAC. Okay, so these are the codons. AUG it codes for the methionine, GGG it's code for the glycine and so on. तो ये कोड करता है. ओके, इसीलिए इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. सो सेंस स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस इट इज नोन एज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, सो
at the translation process, there is synthesis of amino acids, peptide chain is formed, which results into the formation of protein. Okay, so that is the difference between sense strand and antisense strand. Sense strand runs in 5' to 3' and it is known as the coding strand, and antisense strand, it runs in 3' to 5', it is known as the non-coding strand. अब देखते हैं what are the components of this PCR. We will require template DNA polymerase enzyme हमें required है, and that also Taq polymerase. Then we require primers and Dntps. Okay, तो ये सब चीज़ें हमें required है for performing the PCR. So what is the principle behind this? पहला है DNA टेम्पलेट. ओके, तो हमें सबसे पहले DNA टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है. नाउ DNA टेम्पलेट क्या है? इट इज द DNA टारगेट सीक्वेंस. ओके, DNA टेम्पलेट इज DNA टारगेट सीक्वेंस, और ये DNA टेम्पलेट इट कंटेन्स द DNA रीजन विच वी वांट टू एम्पलीफाई, विच वी वांट टू मल्टीप्लाई. ओके, तो पहला हमारा कंपोनेंट DNA टेम्पलेट है. तो यहाँ पर 5' to 3' एंड 3' to 5' बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. दोनों हमारे लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड एज अ एक्ट करता है. 5' to 3' भी एंड 3' to 5' भी. सो दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA सेगमेंट, दिस बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड फॉर अस, एंड दिस आर द टारगेट सीक्वेंस जो हमें मल्टीप्लाई करनी है, जो हमें एम्पलीफाई करनी है. गेटिंग माई पॉइंट? सो इन PCR व्हाट वी डू, वी एम्पलीफाई आवर टारगेट सीक्वेंस. तो हमें यहाँ पर एम्पलीफाई क्या करना है? ये है हमारी टारगेट सीक्वेंस that we want to amplify, and in PCR both strands of the DNA they act as a template. Okay, दोनों strand हमारे लिए template as a act करते हैं. So that is the first component, DNA template, जहाँ पे हमें टारगेट सीक्वेंस एम्पलीफाई करनी होती है, या फिर इट कंटेन्स द टारगेट सीक्वेंस. सेकेंड कंपोनेंट इज DNA पॉलीमरेज, और यहाँ पर जो हम DNA पॉलीमरेज यूज करते हैं दैट इज द Taq DNA पॉलीमरेज, विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. इट इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहता है. इट लिव इन दी हॉट स्प्रिंग्स एंड इट्स DNA पॉलीमरेज इट्स वेरी स्टेबल. इसका जो DNA पॉलीमरेज होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है, एंड इट इज़ एक्टिव अराउंड और टू द टेम्परेचर ऑफ 70 to 72 डिग्री सेल्सियस. और ह्यूमन बींग्स का DNA, एनिमल्स का DNA पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता. इट इज़ इनएक्टिवेटेड. ओके, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है it is inactive at such a high temperature, it get denatured. Okay, so here we use the DNA polymerase, or we can say DNA Taq polymerase हम यहाँ पर use करते हैं, जो हमने isolate किया है from this Thermus aquaticus bacteria, and their DNA polymerase is active at the temperature of 70 degree Celsius. Next component we use called primers. प्राइमर्स क्या होते हैं? ये सिंथेटिक और शॉर्ट DNA स्ट्रैंड्स होते हैं विच कंटेन्स अबाउट 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग DNA स्ट्रेच. तो ये एक शॉर्ट DNA फ्रैगमेंट होता है जिसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ओके, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइमर्स यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज रिवर्स प्राइमर्स एंड सेकेंड इज फॉरवर्ड प्राइमर. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर्स? रिवर्स प्राइमर की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स प्राइमर्स दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड. ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू सेंस स्ट्रैंड, और हमारा सेंस स्ट्रैंड रन होता है 5' to 3'. So these are complementary to our sense strands and it runs in the reverse direction. That is ये 3' से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो सेंस स्ट्रैंड का 3' एंड है. ओके,
3' end of the same strand. So our reverse primer start from the 3' end of the same strand, and these primers are synthesized in the reverse direction, so it is known as the reverse primers. Okay, उसके बाद है forward primers. Forward primers क्या है? These are complementary to 3' end of the antisense strand which runs in the 3' to 5' direction. तो यहाँ पर ये they run in the straight manner, forward manner, so it is known as the forward primers. ठीक है, तो 5' to 3' जो यहाँ पर प्राइमर होता है ये 5' to 3' होगा, और यहाँ पर भी होगा 5' to 3'. मीन्स वॉट, दिस 3' end and 3' end are opposite to each other. Just you have to keep in mind that reverse primer run in the reverse fashion, run in the reverse manner, and a forward primer they run in the straight manner or in the forward fashion. Okay, so it is known as the forward primer. Second point आपको याद रखना है, reverse primer ये complementary होते हैं sense strand के. Okay, so this reverse primers are complementary to sense strand, that is 5' to 3', and forward primer these are complementary to the antisense strand, that is 3' to 5'. So these 2 points you have to keep in mind regarding the primers. Okay, next is here. Okay, अब कभी कभार क्या होता है, ये जो प्राइमर होते हैं, ओके, दिस प्राइमर्स दे गेट अटैच टू देमसेल्व्स, दे गेट बाइंड टू देमसेल्व्स, क्योंकि प्राइमर्स के प्राइमर्स दे कंटेन्स द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. ओके, प्राइमर्स दे कंटेन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके लिए होते हैं? टू बाइंड टू द टारगेट डीएनए सीक्वेंस. पर कभी कभार क्या होता है, ये प्राइमर खुद ही बाइंड हो जाते हैं. ओके, दे बाइंड टू देमसेल्व्स, not to the target sequence, and thus it leads to the formation of hair loop like structure, hair pin loop like structure, और इसके वजह से हमारा जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट है वो हमें स्पेसिफिक नहीं मिलता, वो हमें गलत मिलता है. ओके, सो ये इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं. सो केयर मस्ट बी टेकन while this process, and while carrying out this process we must know the sequence of target DNA. ठीक है, जब हम प्राइमर्स डिज़ाइन करेंगे, फॉरवर्ड प्राइमर्स या रिवर्स प्राइमर जब हम ये डिज़ाइन करेंगे तो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि प्राइमर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कंटेन करता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये हमें बनाने के लिए वी मस्ट नो दी सीक्वेंस ऑफ आवर टारगेट डीएनए. ठीक है, जब हमें सीक्वेंस पता होगी हमारे टारगेट डीएनए की, तभी हम हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स डिज़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज DNTPs, और वी कैन से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. यहाँ पर हमें एडिशनली ऐड करने लाइक एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल. वी हैव टू ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स. तो जब हम ये DNTPs ऐड करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं एंड वी गेट द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो दिस आर द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस PCR. और मैग्नीशियम भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैग्नीशियम भी बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, इन वेरी लेस अमाउंट, एंड इफ इट इज़ अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट देन इट मे डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ दिस एम्प्लीफिकेशन. मैग्नीशियम क्या करता है, इट अफेक्ट्स द प्राइमर एनीलिंग and it can denature the template. So this magnesium is required in very less amount to obtain the desired product. अगर ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा तो हमें नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा जितना चाहिए then it will give the desired PCR product. Okay, so these are the components. Let's see what are the steps involved in this PCR. तो सबसे पहले PCR ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जब
हम एक साइकिल कैरी आउट करते हैं, we can carry out 2-3 cycles, not 2-3 cycle but generally it consists of the 30 to 35 cycles. तो एक cyclic process है, continue process है, and it consists of the series of 30 to 35 cycles, और हर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है. तो वो 3 स्टेप्स कौन से? फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनिलिंग, थर्ड इज एक्सटिंक्शन, एंड ईच साइकिल इट लास्ट फॉर 3 to 5 minutes. मतलब डीनेचुरेशन को लगेंगे 3 to 5 minutes, एनिलिंग को 3 to 5 minutes, एक्सटिंक्शन को 3 to 5 minutes. सो इट इज़ द साइक्लिक प्रोसेस. और हम कितने साइकिल्स कैरी आउट करते हैं पीसीआर के? 30 to 35 साइकिल्स वी कैरी आउट ऑफ पीसीआर. सो लेट्स सी वन बाय वन ईच स्टेप. पहला है डीनेचुरेशन. डी मीन्स रिमूवल, नेचुरेशन मीन्स टू डिस्ट्रॉय. ओके, सो हमें क्या करना है? डीनेचर करना है, ब्रेक करना है. इन शॉर्ट वी वांट टू ब्रेक और वी वांट टू डिस्ट्रॉय द डीएनए. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डीनेचर करेंगे, मतलब हम ब्रेक करेंगे. हाउ वी विल ब्रेक? वी विल ब्रेक बाय प्रोवाइडिंग द हाई टेम्परेचर लाइक 94 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 minute. तो यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग द हीटिंग स्टेप मीन्स डीनेचुरेशन, the reaction mixture is heated to 94 degree Celsius for 1 minute. reaction mixture मतलब PCR ट्यूब होती है. PCR ट्यूब में हम हमारा डीएनए लेंगे जो हमें एम्पलीफाई करना है. ओके, तो उस डीएनए को हम हीट करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस फॉर दी 1 minute. इससे क्या होगा? हमारा जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो सेपरेट हो जाएगा. ओके, इट विल लीड टू द सेपरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब हमें ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा. ओके, सो हियर वी गेट द सिंगल स्ट्रैंड. तो डीनेचुरेशन हुआ है, ब्रेकेज हुआ है ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो हियर वी गेट द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए एंड दिस बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे एक्ट एज द टेम्पलेट. ओके, ये कैसे एक्ट होंगे? एज अ टेम्पलेट. सो दैट इज द डीनेचुरेशन स्टेप. सेकेंड इज एनिलिंग. एनिलिंग का मतलब होता है बाइंडिंग. ओके, तो एनिलिंग होती है एट 54 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो हमने 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया होता है फर्स्ट स्टेप में, इट इज अलाउड टू कूल एट 54 डिग्री सेल्सियस फॉर बाइंडिंग. तो यहाँ पर क्या होता है? दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ कूलिंग ऑफ रिएक्शन आफ्टर डीनेचुरेशन टू 54 डिग्री सेल्सियस एंड इट कॉजेज द एनिलिंग. उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं. एनिलिंग किसके साथ होती है? बाइंड किसके साथ होता है? प्राइमर्स के साथ. ओके, तो यहाँ पर हम प्राइमर्स ऐड करते हैं. हमने देखा है प्राइमर्स क्या है. सो हियर वी ऐड द प्राइमर्स और ये प्राइमर्स बाइंड होते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को. ओके, सो हियर द जीसी कंटेंट के बारे में मेंशन किया है. जीसी कंटेंट मीन्स ग्वानिन साइटोसाइन कंटेंट. तो जीसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मतलब जीसी जो ग्वानिन और साइटोसिन है उनका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? अब ये जीसी बाइंड होते हैं विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, दिस ग्वानिन इट पेयर्स विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एडिनाइन ये थाइमिन के साथ बाइंड होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? बिटवीन जीसी. तो अगर जीसी का कंटेंट ये ज़्यादा होगा, ये हमारे बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करेगा. ओके, या फिर हमारी बाइंडिंग एफिनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है, इसीलिए जीसी कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए जस्ट टू मेक द बाइंडिंग स्ट्रॉन्गर और टू मेक द yes we can say to make the binding stronger. okay, so that is the GC content. तो एनिलिंग में हम क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर्स. देखिए यहाँ पर हमने प्राइमर ऐड किया है. ये हमें सेपरेटेड स्ट्रैंड्स मिले थे एट द फर्स्ट स्टेप. तो हमने जो पहला स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसको हमने रिवर्स प्राइमर बाइंड किया है, और यहाँ पर हमने फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड किया इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. बोथ द प्राइमर्स आर यू कैन सी ये 3 प्राइम टू 3 प्राइम ये सेम डायरेक्शन में आया है. एंड फर्दर इट विल एक्सटेंड.
इन द एक्सटिंक्शन स्टेप और इन द एलोंगेशन स्टेप। एक और चीज़ एनीलिंग में ध्यान रखना ज़रूरी है, वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड करते हैं, प्राइमर्स के साथ हम डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट सिंथेसाइज द स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज ये प्राइमर्स के स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग टेम्परेचर मीन्स व्हाट, डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच हाफ डीएनए इज मेल्टेड। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर हमारा डीएनए ये आधा मेल्ट होता है। सपोज हमारे पास 1 माइक्रोग्राम डीएनए है। ओके, वी हैव 1 माइक्रोग्राम डीएनए, तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब ये डीएनए को हाफ करेगा, मतलब 1 माइक्रोग्राम डीएनए जो था इट विल बिकम 0.5 माइक्रोग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? सो 1 माइक्रोग्राम का कन्वर्जन हुआ है 0.5 माइक्रोग्राम में। तो एनीलिंग टेम्परेचर के साथ हम मेल्टिंग टेम्परेचर देते हैं। मीन्स व्हाट, डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर कितना होना चाहिए, इट मस्ट केप्ट 5 डिग्री लेस ऑफ एनीलिंग टेम्परेचर। ओके, 5 डिग्री सेल्सियस ये लेस होना चाहिए ऑफ एनीलिंग टेम्परेचर। अब हमने एनीलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड किया है 54 डिग्री सेल्सियस। सो टू make the half it must be 5 degree Celsius less of annealing temperature. So you have to just keep certain things in mind during this second step. annealing में क्या होता है, हम टेम्परेचर कूल करते हैं to 54 डिग्री सेल्सियस एंड हियर वी ऐड दी प्राइमर्स। ठीक है, तो प्राइमर्स ऐड करने के लिए टेम्परेचर, मतलब जब हम प्राइमर्स ऐड करते हैं, ओके, व्हेन वी ऐड दी प्राइमर्स देयर मेल्टिंग टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग और बाइंडिंग। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स एलोंगेशन। अब यहाँ पर फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है टू 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम डीएनटीपीज ऐड करते हैं, तो डीएनटीपीज क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज मतलब टैक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो हियर द टैक डीएनए पॉलीमरेज it will extend the strand, it will add the nucleotide and generate the new copy of this strand। मतलब देखिए यहाँ पर हमने प्राइमर्स ऐड किए थे, अब ये प्राइमर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, दोनों प्राइमर्स एक्सटेंड हो रहे हैं और फाइनली हमें न्यू कॉपी ऑफ द डीएनए मिलती है। दिस इज द फर्स्ट कॉपी 5' टू, अब जो हम ये हमारा पहला स्ट्रैंड था पैरेंटल स्ट्रैंड 5' to 3'। ओके, हमें न्यू स्ट्रैंड मिला है 3' to 5' एंड सेकेंड टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा था 3' to 5' और उसका हमें न्यू स्ट्रैंड मिला है 5' to 3'। मतलब एक कॉपी से जो हमारे पास जो 2 कॉपी थे पहले, ओके, the 2 copies of the DNA it generate 4 copies of the new strand। मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो गया है नंबर, इसे हम रिवाइज कर सकते हैं। सो यस, यू कैन सी PCR it is an exponential cycle और we can say it is an elongation cycle। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जब हम PCR स्टार्ट करते हैं, एक साइकिल PCR कंप्लीट होने के बाद हमें 2 कॉपीज मिलते हैं। ओके, सो आफ्टर 1 cycle of PCR we get 2 copies, after 2 cycles of PCR we get 4 copies, after 3 cycle we get 8 copies। तो यहाँ पर एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तब हमें 2 कॉपीज मिलते हैं, मतलब ये 2 कॉपीज, दिस इज दी सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड, सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड, तो हमें यहाँ पर 2 कॉपीज मिली है। ओके, सो फ्रॉम द वन डीएनए स्ट्रैंड हमें मिला है 2 कॉपीज। सो दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ द डीएनए, या फिर कॉपीज यहाँ पर इंक्रीज हो गई है डीएनए की। आइए हम इसे रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। लेट्स स्टडी द डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास था हमारा डीएनए, टारगेट डीएनए जो हमें एम्पलीफाई करना था। ओके, सो दिस इज आवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 3' to 5' and 5' to 3'। ओके, एंड इन दिस PCR बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये था हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद हमने
ये डीएनए को डीनेचर किया बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ओके, उसके बाद हमने एनिलिंग की, एनिलिंग एट 54 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम प्राइमर्स कब ऐड करते हैं? प्राइमर्स हम ऐड करते हैं एट द टेम्परेचर बिलो, or you can say at the temperature of 5 degree less than annealing temperature, that is known as the DNA melting temperature। तो ये टेम्परेचर किस लिए है? प्राइमर्स एडिशन के लिए या प्राइमर्स बाइंडिंग के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर प्राइमर्स ऐड करते हैं इन द एनिलिंग एंड ऑल्सो वी ऐड द टैग डीएनए पॉलीमरेज। आफ्टर एनिलिंग क्या होगा? प्राइमर्स का एक्सटेंशन होगा, प्राइमर्स एलोंगेट होंगे विद द हेल्प ऑफ द टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनटीपीस, और हमें जो एक कॉपी थी हमारे डीएनए की, उससे हमें मिली है 2 कॉपीज। ओके, so this is the increment of our single DNA copy into 2 copies of the DNA, so that is the PCR। जो हम टारगेट डीएनए सीक्वेंस को अगर हमें उसके कॉपीज इंक्रीज करने हैं तो वी कैन यूज दिस PCR टेक्निक। दिस इज द समराइज फॉर्म ऑफ द PCR। देखिए, वी रिक्वायर द वाटर, मैग्नीशियम वेरी लेस अमाउंट 2 माइक्रोलीटर है, डीएनटीपी प्राइमर्स चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए एंड वी रिक्वायर द टेम्पलेट डीएनए। दिस इज द पीसीआर मशीन विच इज नोन एज द थर्मल साइक्लर, हम इसे थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। ओके, एंड ये सारे हम जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये हम पीसीआर ट्यूब में डालते हैं एंड देन वी कीप दिस पीसीआर ट्यूब इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मल साइक्लर। What are the advantages of this PCR? It is a specific, okay, यहाँ पर हमें specific amplification मिलता है। It is rapid technique because 30 to 35 cycles carry out होते हैं and we get thousands to millions of copies of our target DNA। It is fast process, rapid है, specific है। Okay, so these are the advantages। If we will see the disadvantage, इसे हाई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो पीसीआर रन कर रहा है ही मस्ट बी नो दी प्रोसेस और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ दिस पीसीआर। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, कॉस्टली इक्विपमेंट है, देन इट इज कॉस्टली, ओवरऑल इट इज कॉस्टली प्रोसेस एंड वी रिक्वायर द स्टराइल एनवायरमेंट, मतलब हमें यहाँ पर स्टराइल एनवायरमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आवर टारगेट डीएनए इट में गेट कंटेमिनेटेड और हमें जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट मिलता है ये भी हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा अगर हमारा टारगेट डीएनए कंटेमिनेट हो गया तो। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? इट इज़ यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and genetic disease research to identify the new genes। Okay, for the identification of new genes we use this PCR technique। Like if our sample contain pathogenic DNA, अगर हमारे सैंपल में पैथोजेनिक डीएनए है तो हम उसे एम्पलीफाई करके उसका PCR परफॉर्म करके प्राइमर्स का यूज़ करके उसकी कॉपी इंक्रीज कर सकते हैं एंड वी कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक डीएनए। ओके, नेक्स्टली इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स इट इज़ द फील्ड इन विच वी स्टडी द ह्यूमन बींग्स, लाइक उनका ओरिजिन हम स्टडी करते हैं, उनका डेवलपमेंट, तो दैट इज़ द फील्ड कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी। तो पीसीआर हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं just for the evolution purpose and the sequences of the degraded ancient DNAs can be tracked after PCR amplification। means अगर ancient DNA हमें कहीं से मिला है, okay, ancient सैम्पल हमें मिला है और वो बहुत लेस अमाउंट में है एंड वी वांट टू डू स्टडी ऑफ दैट एंशियंट सैम्पल, so what we will do, we can perform the PCR of this small sample and can obtain thousands of copies with the PCR and can be used for the study or research purpose। Next, it is with its exquisite sensitivity and high selectivity। here exquisite का मीनिंग है ब्यूटीफुल, तो PCR ये रियली एज आई टोल्ड इट इज़ boon for molecular
biology field, and this is used for human identification for the forensic केस वर्क पर्पस टू आइडेंटिफाई द, और अगर क्रिमिनल का डीएनए है हम उसे भी एम्पलीफाई कर सकते हैं. प्लस इट इज़ यूज्ड इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट डिसीजेस लाइक कैंसर. ओके, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो देयर आर वाइड एप्लीकेशंस ऑफ PCR. So this was all about the polymerase chain reaction, the principle and brief explanation regarding PCR. In next lecture, we will discuss types of PCR. Thank you.